Everyone. Today, I'm going to start the new series which is related to UGC NET examination. As we know, so many questions come in the chronology base. So today, I'm going to start that type of question, and no doubt it will help a lot because they are directly asking about the chronology, or we can say the date timing. So I'm going to start from Victorian era, and after this, we will start with other one. So we will start with the Victorian era, and we will start with the historical event. So if we see the historical event, so first one was accession of Queen Victoria. तो अगर हम यहाँ बात करें तो एक्सेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया मतलब क्वीन विक्टोरिया ने कब सिंहासन पे बैठी थी, तो वो 1837 की बात है जब वो सिंहासन पे बैठी थी, मतलब उनका जब रूल स्टार्ट हुआ था. देन वी विल सी नेपोलियन सेंट टू सेंट हेलेना इन 1815. ठीक है, तो डायरेक्टली वी विल रीड एंड वी विल लिसन ओनली विच हेल्प अस. ठीक है, तो नेपोलियन सेंट टू सेंट हेलेना इन 1815. फिर डेथ ऑफ नेपोलियन हेल्ड इन 1821 एंड आफ्टर दिस स्लेवरी एबॉलिश इन ब्रिटिश एम्पायर इन 1833. इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857. अब यहाँ पोइट्री देख लेंगे तो वी विल सी द पोइट्री टेनिसन्स पोयम दैट केम इन 1833, ब्राउनिंग्स Pauline also come in 1833, and all straight Reveler. It came in 1848, and also Straight Reveler came in 1848, and also poem, which is also an all poem. And Mrs. Browning's Aurora Lay. अरोरा ले ये क्वेश्चन आ चुका है, तो मिसेस ब्राउनिंग्स अरोरा ले केम इन 1856. ओके, नाउ द ड्रामा वी विल सी दैट इज पाइनरियो सेकंड मिसेस ट्वेंक्रे. पाइनरियो second Mrs. Tanqueray, which came in 1893. Then Wild Importance of Being Earnest. Wild's Importance of Being Earnest, it came in 1895. Next is H.A. Jones. H.A. Jones का जो आया द लायर वो 1897 में आया. फिर पाइनरोज ट्रिल लेवनी ऑफ द वेल्स, इट केम इन 1897. तो अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गलती हो सकती है तो उसको प्लीज इग्नोर करिएगा. So we will see H.A. Jones, which came in H.A. Jones का The Liar 1897 में आया, और Pioneers Triplaney of the Wells, it also came in 1897. Prose की बात करें तो we will see the prose here. Carlyle's Sartre's, it came in 1833 to 34. Then Carlyle's French Revolution it came in 1837. Lockhart's Life of Scott, it came in 1838, and Macaulay's Essay came in 1843. So we will see it again. General Carlyle's का जो हम प्रोज वर्क देखेंगे, Sartre's, it came in 1833, 34, and Carlyle's French Revolution came in 1837. Lockhart's Life of Scott came in 1838, and Macaulay's Essay 1843. Okay, now the next thing we can see here. Now the next thing we can also see again the historical event which was held, that is American Civil War, जो कि कब हुआ था 1861 से 65 के बीच में कब हुआ था, अमेरिकन वॉर हुआ था. देन असोसिनेशन ऑफ अब्राहम लिंकन की डेथ कब हुई थी, मर्डर कब हुआ था 1865 में. क्वीन विक्टोरिया बिकेम इम्प्रेस ऑफ इंडिया 1876 में. तो हमने पता है कि वो 1837 में इंग्लैंड में क्वीन बनी थी, लेकिन इंडिया में वो कब रानी बनी 1876 में. क्वीन विक्टोरियाज गोल्डन जुबली 1887, Victoria's Diamond Jubilee in 1897, and Queen Victoria's death was held in 1901. और उसके बाद जो उनका इरा खत्म हुआ तो नेक्स्ट किंग बने, दैट वाज एडवर्ड 7. तो एडवर्ड 7 को हम देखेंगे सक्सीड टू द थ्रोन ऑफ 1901. ठीक है. Now we will see again the poetry which published during the Victorian era. So that is Tennyson's Idylls of the King. Tennyson's Idylls of the King, which came in 1858, जो कि 1859 से 86 के बीच में हुआ था. Then we will see the Swinburne's poem and ballads. हम उसके बाद Swinburne की poem और ballad को देखेंगे जो कि 1866 में हुआ था. Then we will see the Browning's The Ring and the Book. We will see what Browning's The Ring and the Book, which came in 1868 to 69. Then Morris's Earthly Paradise. Morris's का क्या है, Earthly Paradise, जो कि 1868 से 70 के बीच में आया. Then Rusty's Poem. ठीक है, तो रॉस्टी की पोएम भी देखेंगे 1870 से 72 के बीच में है. देन रॉबर्ट ब्रिज शॉर्टर पोएम. फिर रॉबर्ट ब्रिज की हम शॉर्टर पोएम देखेंगे जो कि 1873 से 80 के बीच में आई. देन किपलिंग्स बैरक रूम बैलेट, तो ये भी आपका देख लीजिए, रुडियार्ड किपलिंग का वर्क था बैरक रूम बैलेट, इट केम इन 1892. देन वी विल सी थॉमसन्स हाउंड ऑफ हेवन.
तो थॉमसन की जो वर्क थी, पोइट्री पोयम थी, which came in which known as Hound of Heaven, it came in 1893. Then we will see Keats poem 1895, Houseman's. Then we will see Houseman's Strop Silence, जो कि 1896 में आई. फिर हम देखेंगे ऑस्कर वाइल्ड की बैलेड ऑफ रीडिंग गाउल, जो कि 1898 में आई. वाइल्ड की क्या देखेंगे, ऑस्कर वाइल्ड की देखेंगे बैलेड ऑफ रीडिंग गाउल, दैट केम इन 1893. देन वी विल सी द हार्डीज वैक्सेस पोएम. हार्डीज वैक्सेस पोएम जो थी वो 1898 में आई. तो दीज आर द पोएट्री व्हिच केम, पोएम्स व्हिच केम इन विक्टोरियन एरा. नाउ वी विल टॉक अबाउट द ड्रामा. सो वी विल सी द बेनेट शॉ का प्ले प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट केम इन 1898. रिमेंबर बेनेट शॉ का जो प्ले प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट है वो 1898 में आया. फिर हम देख सकते हैं एच ए जोन्स का मिसेस जेन्स डिफेंस. एच ए जोन्स का क्या है, मिसेस जेन्स डिफेंस, ये 1900 में आया. देन हार्डीज डायनास्ट केम इन 1904 टू 8, बिटवीन 1904 टू 8 में आई. ठीक है, तो वी विल सी बर्नार्ड शॉ प्लेस प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट केम इन 1898. एच ए जोन्स मिसेस जेन्स डिफेंस केम इन 1900 एंड हार्डीज डायनास्ट केम इन 1904 टू 1904 टू 8 के बीच में. Then we will see the novel which came, prose work as we know. So यहाँ हम देखेंगे प्रोज, विक्टोरियन एरा कहीं ना कहीं प्रोज का टाइम माना जाता है. इसमें प्रोज को बहुत पब्लिश किया गया. तो we will see it again. रस्किन्स मॉडर्न पेंटर came in 1843 to 60. रस्किन्स का जो मॉडर्न पेंटर था वो 1843 में आया, जो कि और 1843 से 60 के बीच में पब्लिश हुआ. देन मैकालेस हिस्ट्रीज केम इन 1848 टू 60. देन ट्रॉट्स हिस्ट्री 1856 टू 69. देन बकल सिविलाइजेशन केम इन 1857 टू 61. एनॉल्ड एस्से इन क्रिटिसिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट. एनॉल्ड का जो एस्से इन क्रिटिसिज्म था वो 1865 में आया, जो कि 68 में फिर से आया. देन पेटर्स रेनेसेंस केम इन 1873. पेटर्स का रेनेसां आया 1873 में. देन वी विल सी द साइमन रेनेसेंस इन इटली. साइमन का जो रेनेसां पीरियड था वो इटली में भी आया, वो 1875 टू 1860 के बीच में था. Then Stevenson's Virgin Bus and Puresque. Stevenson's Virgin Bus Puresque came in 1881. If we talk about the novels, so we will see the Dickens Bodge. Dickens का जो Bodge मैगजीन जो नॉवल था वो 1834 में आया. फिर Dickens का हम देखेंगे पिकविक पेपर 1837 में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, ठाकरे's येलो प्लस पेपर, ठाकरे का जो येलो प्लस पेपर था वो 1837 में आया. डिज़राइल सिबिल का 1845 में आया. ठीक है. देन ठाकरे's Vanity Fair, the novel without hero which came in 1847 to between 1847 to 1848. ब्रॉन्टेस का जैन आयर आया, जो कि 1847 में. ब्रॉन्टेस सिस्टर जो थी उनका जैन आयर नाम का वर्क आया which came in 1847. देन किंगले एमिस का एल्टन लॉक आया, जो कि 1850 की बात है. देन वी विल सी थ्रोलॉप वार्डन 1855, थ्रोलॉप वार्डन 1855. जॉर्ज इलियट का सेरिकल लाइफ, जॉर्ज इलियट का क्या है, सेरिकल लाइफ विच केम इन 1858. जॉर्ज इलियट का ही एडम बेडे भी आया, जो कि 1859 में आया. जॉर्ज इलियट का क्या था, एडम बेडे, जो कि 1859 में आया. देन मेडिट्स का रिचर्ड फेवरेल, ये कब आया, दिस आल्सो केम इन 1859. इट आल्सो केम इन 1859. देन वी विल सी द हार्डीज रिटर्न टू द नेटिव. इट केम इन the Hardy's Mayor of Casterbridge, it came in 1885. और अगर हम रिटर्न ऑफ द नेटिविटी की बात करें तो यहाँ पे हार्डी की जो रिटर्न ऑफ द नेटिविटी था वो 1878 में आया. रिमेंबर हार्डीज की रिटर्न ऑफ द नेटिविटी कब आया, 1878 में. हार्डीज का मेयर ऑफ कास्टरब्रिज आफ्टर वी कैन से 7 years केम. ठीक है. देन किपलिंग प्लेन टेल्स ऑफ द हिल, नॉवल है किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग, जिनका जन्म बॉम्बे में हुआ था, उनका वर्क भी आया, टेल्स फ्रॉम हिल्स, इट केम इन 1887. देन गिसिंग न्यू गर्व स्ट्रीट, New Gov Street, it came in 1891. Then Gissing born in exile, the next year. Gissing's born in exile कब आया, 1892 में. Then Hardy's Test came in 1891. Hardy's की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वर्क है, नॉवल है, वो कब आया, 1891 में. Morris Sterile Water came in 1894. Hardy's Jude the Obscure came in 1895. Hardy's का Jude the Obscure came in 1895. Then H.G. Wells का Time Machine बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, it came in 1895. H.G. Wells का क्या आया, टाइम मशीन नाम का नॉवल आया, जो कि 1895 में आया. सो ये हमारा था. नाउ वी विल सी इट अगेन, मेजर ऑथर ऑफ द एज ऑफ द विक्टोरियन एरा. तो उनका कुछ हम देखेंगे, पोएट्री में किसने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, क्या उन्होंने प्रोज में दिया, क्या उन्होंने नॉवल में दिया, जिससे क्या होगा, हमें इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलेगा. तो वी विल सी इट अगेन. तो फर्स्ट वी विल सी द पोएट्री विच रोड बाय द ऑथर्स. सो फर्स्ट इज एल्बर्ट टेनिसन. उनका जो वर्क था, उनका जो टाइम ड्यूरेशन था, दैट इज 1892 and 1892. तो 1890, रिपीट आफ्टर मी,
1892, then Robert Browning 1812 to 1889. रॉबर्ट ब्राउनिंग का क्या था 1812 टू 1889. देन मैथ्यू अर्नोल्ड का 1822 टू 1888. मैथ्यू अर्नोल्ड का क्या था 1822 टू 1888, मतलब इनका जो था वो मात्र 66 ईयर एज ही. देन आर्थर हाफ कार्प का जो था वो 1891 से 1861 था. आर्थर कार्प का क्या था 1892 टू 1861. देन एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का 1806 टू 1861. 1806 टू 1861. नेक्स्ट इज डिजी रॉजटी का आया 1828 टू 1882. डिजी रॉजटी जो थी वो भी 1828 से 1882 तक का उनका टाइम ड्यूरेशन माना जाता है. देन क्रिस्टीना जॉर्जिना रॉस्टी, इट आल्सो केम इन 1832 1894. Then we will see the AC Swinburne. तो AC Swinburne का भी हम देखेंगे 1837 से 1909 के बीच का माना जाता है. 1837 से 1909 का. नेक्स्ट इज विलियम मॉरिस. विलियम मॉरिस क्या है 1834 से 1896 के बीच का. ओके तो इट विल बी 1834 टू 1896. नेक्स्ट इज हेनरी टेलर. हेनरी टेलर क्या है 1800 से 1896 के बीच 86 के बीच में. सर हेनरी टेलर का हम देखेंगे 1800 से 1886 के बीच में. नेक्स्ट इज रॉबर्ट स्टीफन हॉकर जो कि 1803 से 1875 के बीच में माना जाता है. रॉबर्ट स्टीफन हॉकर का हम देखेंगे 1803 से 1875 के बीच में माना जाता है. नेक्स्ट इज एडवर्ड फिट्जजेराल्ड. तो एडवर्ड फिट्जजेराल्ड का देखेंगे 1809 टू 1883. 1809 टू 1883. नेक्स्ट वन इज मार्टिन फकार चुपर. तो उनका जो पोइट्री का टाइम जो उनका टाइम ड्यूरेशन है दैट इज 1810 टू 1889. मार्टिन फाल्कनर का जो है दैट इज 1810 टू 1889. फिलिप्स जेम्स बैली का है 1816 टू 1902. फिलिप जेम्स बैली का क्या है 1816 टू 1902. नेक्स्ट है सिडनी डॉबेल. सिडनी डॉबेल उनका टाइम है क्या है 1824 टू 1874. 1824 टू 1874. नेक्स्ट इज अलेक्जेंडर स्मिथ. अलेक्जेंडर स्मिथ का क्या है 1830 टू 1867. 1830 to 1867. नेक्स्ट इज जेम्स थॉमसन. जेम्स थॉमसन की बात करें तो 1834 टू 1882. 1834 टू 1882. नेक्स्ट इज डेविडसन. डेविडसन का क्या है 1857 टू 1800 1857 टू 1857 टू 1909. थॉमस हार्डी का देखेंगे 1840 टू 1928. 1840 में इनका जन्म हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1828 में. नेक्स्ट इज अल्फ्रेड आइंस्टीन का देखेंगे. इनका जो जन्म हुआ था 1835 में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1913 में. इनकी डेथ कब हुई थी 1819 में. अल्फ्रेड आइंस्टीन का जन्म हुआ था 1835 में था. इनकी डेथ हुई थी 1913 में. डब्ल्यू.ई. हेनले को देखेंगे. उनका जन्म हुआ था 1849 में और उनकी डेथ हुई थी 1903 में. तो यहाँ क्या है 1849 में इनका जन्म हुआ था 1903 में इनकी डेथ हुई थी. नाउ H.W. लॉन्गफेलो को देखेंगे. H.W. लॉन्गफेलो का जो जन्म हुआ था वो 1807 में हुआ था और डेथ इनकी 1882 में हुई थी. ठीक है तो H.W. लॉन्गफेलो का जो जन्म हुआ था वो 1807 में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1882 में. नेक्स्ट इज फ्रांसिस थॉमसन. फ्रांसिस थॉमसन का जो जन्म हुआ था वो 1859 में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1907 में. फ्रांसिस थॉमसन का जो जन्म हुआ था 1859 में हुआ था और डेथ हुई थी 1907 में. नाउ नेक्स्ट इज वी विल सी द प्रोज राइटर्स नेम. सो द फर्स्ट वन इज थॉमस कार्लाइल जिनका जन्म हुआ था 1795 में और डेथ हुई थी 1881 में. इनका जन्म कब हुआ था 1895 में हुआ था और डेथ हुई थी 1881 में. आफ्टर दिस देयर इज जॉन रस्किन. जॉन रस्किन की बात करें तो उनका भी जन्म 1819 में हुआ था, डेथ हुई थी 1900 में. 1819 टू 1900. नेक्स्ट इज मैथ्यू अर्नोल्ड 1822 टू 1888. ठीक है 1822 टू 1888. टीबी मैकाले 1800 से 1859. टीबी मैकाले क्या है 1800 टू 1859. विलियम मॉरिस 1834 टू 1896. 1834 टू 1896. एस.टी. बकल. एस.टी. बकल का क्या हुआ था 1821 टू 1862. 1821 टू 1862. एडवर्ड फ्रीमैन क्या है 1823 टू 1892. 1823 टू 1892. जी.ए. फ्रॉड क्या है 1818 टू 1894. जी.ए. फ्रॉडे क्या है 1818 टू 1894. नेक्स्ट इज जे.ए. साइमन. जे.ए. साइमन का टाइम क्या है 1840 टू 1893. जे.ए. साइमन 1840 टू 1893. लेस्ली स्टेफन का है 1832 टू 1904. 1832 टू 1904. जॉन हेनरी न्यूमैन का क्या है 1801 टू 1890. जॉन हेनरी न्यूमैन का क्या है 1801 टू 1890. जॉन टिनले क्या है 1820 टू 1893. 1820 टू 1893.
नेक्स्ट जॉन हेनरी हक्सल। जॉन हेनरी हक्सल का टाइम माना जाता है 1825 टू 1895, 1825 टू 1895। वॉल्टर पीटर का टाइम क्या है? 1839 टू 1894, 1839 टू 1894। आर एल स्टीवेंसन का क्या है? 1850 टू 1894, 1850 टू 1894। ऑस्कर वाइल्ड का क्या है? 1856 टू 1900, 1856 टू 1900। नाउ द नेक्स्ट वन इज चार्ल्स डिकेंस 1812 टू 1870। चार्ल्स डिकेंस का देखिए 1812 टू, अभी हम नॉवलिस्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो चार्ल्स डिकेंस जो कि बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट थे उनके टाइम के, तो उनका टाइम है 1812 टू 1870। विलियम मेकपीस ठाकरे का क्या है? 1811 टू 1863। जॉर्ज एलियट मतलब मैरी और मैरियन एवॉन के नाम से जिनको जाना जाता है, दैट इज 1810 टू 1880। देन चार्ल्स रिड 1814 to 1884, 1814 to 1884. Mrs. Gaskell 1810 to 1865. Mrs. Gaskell का क्या? 1810 to 1865. Anthony Trollope के 1815 to 1882, 1815 to 1882. बेंजामिन डिसराइल का है 1804 to 1881, 1804 to 1881. लॉर्ड लिटन के 1803 to 1887, सॉरी 1803 through 1873, 1803 to 1873. नेक्स्ट इज चार्लोटी ब्रॉन्टी। शार्लोटी ब्रॉन्टी का क्या है? 1816 to 1855, 1862 16 to 1855. एमिली ब्रॉन्टी का क्या है? 1818 to 1848, 18 to 1848. एनी ब्रॉन्टी क्या है? एनी का टाइम है 1820 to 1849, 1820 to 1849. means she only lived for 29 years. Then Charles Kingsley का है 1810 to 1875, 1810 to 1875. नेक्स्ट इज विलियम विल्की कॉलिन, तो उनका है 1824 to 1889, 1824 to 1889. जॉर्ज मेरिथ का क्या है? 1828 to 1909, 1822 to 28 to 1909. रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन का क्या है? 1850 to 1894, 1850 to 1894. थॉमस हार्डी का क्या है? 1840 to 1928, 1840 to 1928. ठीक है। So this is the time duration of all the writer. Now we will see the important work of the major author. तो एल्बर्ट टेनिसन का हम देखें तो एल्बर्ट टेनिसन का जो मेन वर्क था, द प्रिंसेस इन मेमोरियम, मॉट, इनोक एडन, इडली ऑफ द किंग, Idol of the King, Queen Mary, Harold Beckett, Akbar Storm, Crossing the Ball, Locksley Hall 60 year after. तो ये फिर से देख लीजिए, द प्रिंसेस इन मेमोरियम, मॉट, इनोक एडन, Idol of the King, Queen Mary, Harold Beckett, Akbar Storm, Crossing the Bar, Locksley Hall 6 years after. Next is Dora, poem by the two brothers. Next is the Falcon. Next is the Cup. Then poem chiefly lyrical. Then Ulysses. Then the Lotus Eater, and the next is the Death of the Onion, and other poem. The Death of the Onion, Oinon and other poem. So that's for today. We will continue this series tomorrow. So thank you for all this session.